गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था और दूसरे पॉइंट का हिंदी में डिस्कस कर लिया था। चलिए उसका अंग्रेजी बचा हुआ था, तो पहले मैं वो कर देता हूँ, आपको अंग्रेजी में उसका रूपांतरित कर देता हूँ। जो दूसरा पॉइंट है आपका, जो आप हिंदी में ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखिए। पॉइंट नंबर 2, normally we see that under local agency we keep the social communities and several social organizations. We understand one thing, that in our society people belonging to different fields are living together. They are living together. A successful doctor, engineer, socialist, politician, philosopher, etc. All such people live together in our society. Normally, we find one thing, that sometime when teachers are not being appointed inside the school in appropriate number according to required subject, then several kinds of problems may occur. The teaching learning conditions may be affected badly. But these people who are having great experiences in their field, and they great experiences in their field, they can share their knowledge and experience with the students. Not only this, they can provide effective suggestions to teachers as well on the basis of their experiences that how they can be more useful for the students. So we see that these people of society actually help the teachers with the help of their vast experiences, and thus we can realize that how the local agency can help to construct the curriculum, to select the effective contents for the curriculum, and to run the curriculum ideally. चलिए अब आइए, हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किया, तीसरा करते हैं। चलिए पहले हिंदी में देखते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में जो छात्र पढ़ने आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं होती। वे प्रायः गरीबी के चपेट में रहते हैं। कई छात्र तो ऐसे होते हैं जो गरीबी के कारण विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाते। कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें अपने माता पिता के साथ कार्य के लिए जाना पड़ता है विवश होकर, और वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे छात्र जो कि अपनी गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते और जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं रहती, अर्थात जिनके पास ना ही कागज है, कलम है, ना ही पुस्तक है और ना ही अन्य सुविधाएं हैं, ना ही विद्यालय में जमा करने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क देने की सुविधा है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हमारा जो समाज है, हमारा जो स्थानीय समुदाय है, वह कई दृष्टिकोण से लाभदायक, कई दृष्टिकोण से सहायक की भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा ऐसे बच्चों को पहचाना जाता है और उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। इनके द्वारा ऐसे बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित की जाती है। इनके द्वारा विद्यालय को समय समय पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इनके द्वारा शिक्षक को भी समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि कैसे ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय अधिक से अधिक लाभदायक हो सकता है और किस प्रकार एकीकृत रूप से कार्य करने से इन बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस तरह से भी जो समुदाय है, जो स्थानीय समुदाय है, वो पाठ्यक्रम के निर्माण में, संचालन में जो है शिक्षकों को सहायता प्रदान करता है।
तो इस दृष्टिकोण से भी ये लाभदायक है। चलिए अब आइए इसी को अंग्रेजी में भी कर लीजिए कि नॉर्मली वी सी दैट पीपल of our society are not very rich from economical perspective. Those students who are belonging to very poor family, they always have the scarcity of books, pen, pencil, papers, etc. There are several students who are willing to go to school to get education, but they are bound to go with their parents to work in fields. They do not have that much of facilities so that they can go to school to have education. Our society, there are several community in our society who are working for such students. They identify such students and they provide economical support to these students. They provide financial assistance to schools as well. They provide important information to teachers that how they can play effective role in providing better education to such people. So what amendments or what changes can be done inside the curriculum so that the curriculum may be more beneficial for these marginalized students. So all such assistance are being obtained from the local agency. So from this view, again we can understand that how these local agencies are important. चलिए अब आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रायः जब सरकारी विद्यालयों का विश्लेषण किया जाता है तो हम पाते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत न होने के कारण कई तरह की कमियां पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में आदर्श पुस्तकालय, आदर्श प्रयोगशाला एवं अन्य जो आधारभूत सुविधाएं हैं, इसका अभाव साफ देखने को मिलता है। एक आदर्श पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं विद्यालय प्रांगण में मौजूद हों, किंतु कई कारणों से, जिसमें कि आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कई कारणों से आधारभूत सुविधाएं विद्यालय को प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण पाठ्यक्रम का संचालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में भी जो स्थानीय समुदाय है, जो स्थानीय एजेंसियां हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें इन एजेंसियों द्वारा विद्यालय को समय समय पर कई तरह के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि आधारभूत सुविधाओं को तैयार किया जा सके। इतना ही नहीं, इन स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक प्रयोगशाला, ऐसी इकाइयों का निर्माण किया जाता है ताकि विभिन्न विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र सामुदायिक पुस्तकालय तक बिना किसी रोक टोक के आ सकें और यहाँ आकर निःशुल्क रूप से या बहुत कम शुल्क देकर पुस्तकों का अध्ययन कर सकें ताकि उनका अधिगम एवं शिक्षण का कार्य प्रभावित न हो सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस तरह के जो पुस्तकालय हैं, ये छात्रों के लिए भी लाभकारी हैं, शिक्षकों के लिए भी लाभकारी हैं। ऐसे कई तरह की सहायता हमारे स्थानीय समुदाय द्वारा प्रदान की जाती हैं विद्यालय को, शिक्षक को, जिससे कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में विशेष रूप से सहायता मिलने लग जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो स्थानीय इकाइयाँ हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसको अंग्रेजी में भी कर लेते हैं कि when we analyze the actual status of different government schools, then we come to know the fact that the situation of government schools are not very satisfactory. Normally we find that there are
normally we find that due to poor economical condition, several kinds of several kinds of discomforts are found in our government schools. They do not have basic facilities as well. We see that they do not have a standard or ideal library, laboratory, etc. Due to which it becomes very difficult to achieve all the basic objectives of the curriculum. Without having basic infrastructural facilities inside the school, the objectives of the curriculum cannot be obtained, and it will not be possible to conduct the curriculum ideally. But when we see the role of local agency, we again find one thing, that these local agencies are playing very important role here again, because after every interval of time they provide financial assistance in different ways to schools. Not only this, they construct community library, community laboratory for the students of adjacent schools, so that students can come and study there and get benefits. So we can understand that these kind of facilities that are being provided by the local agencies are very beneficial for not only students but for the teachers as well. So we can understand that how local agencies are helpful. चलिए अब जो है एक अलग हेडिंग क्रिएट कर लीजिए और उसमें आप मेंशन कीजिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय एजेंसियां, सम इम्पॉर्टेंट लोकल एजेंसीज लिखिए. दीज आर एज फॉलो, ये इस प्रकार हैं. पहला, महिलाओं के विकास से संबंधित एजेंसी लोकल एजेंसी, ऐसे लिखिए, महिलाओं के विकास से संबंधित स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. फिर लिखिए, बालकों के विकास से संबंधित स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. फिर लिखिए, बालक के आदर्श शैक्षिक विकास के लिए निर्मित स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी स्पेशली मेड फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. फिर जैसे सांस्कृतिक विभाग, कल्चरल डिपार्टमेंट, सेवरल लोकल कल्चरल डिपार्टमेंट्स, स्थानीय सांस्कृतिक विभाग, ऐसे लिखिएगा. तो इस तरह से सामाजिक मुद्दों से जुड़े स्थानीय एजेंसियां, लोकल एजेंसीज रिलेटेड टू सोशल इशूज. फिर लिखिए, बालकों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करने से संबंधित स्थानीय एजेंसियां, लोकल एजेंसीज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फंडामेंटल एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन. फिर कीजिए, प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने वाले स्थानीय एजेंसियां, लोकल एजेंसीज रिलेटेड टू एडल्ट एजुकेशन, लोकल एजेंसी रिलेटेड टू एडल्ट एजुकेशन. इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे. खाली यहाँ पर नाम मेंशन कर देना है और यहाँ कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है. चलिए, तो ये जो हमारा लोकल एजेंसी है वो समाप्त होगा. अब आइए हम लोग जो है क्षेत्रीय, अब मेन पॉइंट नंबर 2 बनाते हैं. मेन पॉइंट नंबर 2 जो कि है क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसियां, है ना, रीजनल अथवा रीजनल और स्टेट लेवल एजेंसीज. अंडरलाइन कर दीजिए इसको. चलिए लिखिए. पहले पैराग्राफ में लिख लीजिए, क्षेत्रीय अथवा
राज्य स्तरीय एजेंसियों का भी पाठ्यक्रम के निर्माण, संचालन इत्यादि में विशेष भूमिका है। राज्य स्तर पर जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनका निराकरण किस ढंग से होगा, राज्य की आवश्यकता क्या है, राज्य की समस्याएं क्या हैं, राज्य की अपनी सीमाएं क्या हैं, राज्य की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां क्या हैं, इसको ध्यान में रखकर राज्य अपने लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। यह अधिकार राज्य को है ताकि राज्य की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पाठ्यक्रम की सहायता से की जा सके। इस उद्देश्य से क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन एजेंसियों द्वारा राज्य से संबंधित उन सभी मुद्दों को पाठ्यक्रम में व्यापक स्थान दिया जाता है जिसकी सहायता से राज्य का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है, जिसकी सहायता से राज्य के लोगों को योग्य बनाया जा सकता है, जिसकी सहायता से राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। राज्य की समस्या को ध्यान में रखकर वे प्रकरण कौन से होंगे, उप प्रकरण कौन से होंगे, वो बिंदु कौन से होंगे, वे शैक्षिक गतिविधियां कौन सी होंगी जिन्हें पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, इन सब से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने में यही क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे कि राज्य एक आदर्श पाठ्यक्रम को विकसित करने में सक्षम हो पाता है। इनके द्वारा शिक्षकों को भी व्यापक सुझाव दिया जाता है ताकि शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। चलिए अब आप लिख लीजिए अंग्रेजी में भी कि दी रीजनल और स्टेट लेवल agencies are very important to construct an ideal curriculum. Normally we see that state has the right to develop its own curriculum so that it can fulfill their basic needs and requirements, etc. Full stop. Every state is having different conditions, different circumstances, different kinds of problems, etc. So, to fulfill their specific needs, it is very important to select effective contents to develop the curriculum, because with the help of curriculum all kinds of regional requirements can be fulfilled. So what will be those areas, what will be those topics, subtopics or educational activities which must be included inside the curriculum, so inside the state curriculum, so that state can fulfill all the expectations of their people. All such guidelines are being given to regional or state level agencies. So from this view we can understand that this is very important. Again, चलिए अब आ जाइए, हेडिंग क्रिएट कर दीजिए। क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसियों के महत्वपूर्ण प्रकार। क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसियों के महत्वपूर्ण प्रकार आप लिख लीजिए। जैसा कि आपने रीजनल में अंग्रेजी में लिखिए ऐसे, टाइप्स ऑफ रीजनल और स्टेट लेवल एजेंसीज, टाइप ऑफ रीजनल और स्टेट लेवल एजेंसीज। अंडरलाइन कीजिए, दीज आर एज फॉलोड कर दीजिए। कौन कौन से हैं? नंबर 1, राज्य के शिक्षा विभाग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। नंबर 2 लिखिए, शिक्षा निदेशालय, एजुकेशनल डायरेक्टोरेट्स। उसके बाद लिखिए
SCERT 3 नंबर में SCERT, ठीक है, 3 नंबर में SCERT 3 नंबर हुआ। उसके बाद चौथे में लिखिए डाइट, सब कैपिटल में DIET। उसके बाद लिखिए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय, सेवरल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डिफरेंट टीचर, ऐसे लिखिए डिफरेंट कॉलेजेज प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन, ऐसे लिख करके। तो ये इसको पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब इसको एक एक बिंदु को हम लोग उठाएंगे और एक एक बिंदु को डिस्क्राइब करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो था शिक्षा निर्देशालय था, एजुकेशनल डायरेक्टरेट्स, इसको और भी उपनाम से जाना जाता है। खैर अभी फिलहाल इसको लिखिए। तो उम्मीद है 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जो प्रकार हैं रीजनल अथवा स्टेट लेवल एजेंसीज, उसको आपने लिख लिया है। मैं एक बार दोहरा दूं, राज्य के शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय, SCERT, DIET, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय और विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। SCERT जो आपने लिखा है ये भी टोटल कैपिटल में होगा, SCERT। उसी तरह से डाइट भी जो है वो सब कैपिटल में, DIET, ठीक है। तो अब इसको 1 बाय 1 हम लोग उठाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, टीचर को कैसे हेल्प करता है और कैसे करिकुलम को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग अगले वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ों पर चर्चा की गई है वो सब आपके समझ में आया है, आप लाभान्वित हो पा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।